ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ لوگ گلشن طیب دارالعلوم قادریہ توحیدیہ کے مدرس مولانا قمر الدین صاحب سے نعت و منقبت اور تھوڑی دیر کی اچھی گفتگو سماعت فرمایا۔ اس سے پیشتر آپ کے امام حافظ و قاری محمد حسین صاحب سے نعت و منقبت سماعت فرمایا۔ اس سے پیشتر ان بچوں کے سے نعت و پاک سماعت فرمایا۔ میں کچھ دیر کے لیے آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ بڑا افضل مہینہ ہے جی۔ اسی مہینے کے صدقے دوپہر رب کعبہ ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اسی مہینے کے صدقے دوپہر رب کعبہ ہمیں محلات عطا فرمایا۔ اسی مہینے کے صدقے دوپہر ہمیں ہمارے دلوں پر جو ہے سانس عطا فرمایا۔ اگر ہم زندہ ہیں تو آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آمد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، آمد مصطفیٰ کی عنایتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دیبار در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیبار در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کے خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ واہ بے شک۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ عاشق نگارے سور میں، عاشق سے یہ کہا، عاشق نگارے سور میں عاشق سے یہ کہا، انگلی جرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ واہ واہ ماشاء اللہ، بہت انگلی جرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، خواب میں ہی صحیح دیدار پیمبر ہوگا۔ امت اگر عبرت سمجھا، اپنا سبق سمجھا تو سمجھ لو تم کامیاب ہو۔ رب نے ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رب نے بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب نے بھیجا ہے انسان اور جنات کو تو صرف اور صرف عبادت الہی کے لیے بھیجا ہے، مگر ہم جب دنیا پر آئے تو دنیا کے رنگینیوں پر جو ہے ہم مست ہو گئے۔ جیسے ہی جو ہم ہوش سنبھالتے گئے رب کا خوف دل سے نکلتا گیا، جیسے ہی ہماری عمر جو ہے بڑھتی گئی ہم جو ہے دنیا کے لذتوں پر پھنستے گئے۔ اگر دنیا کی لذتیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو قسم خدا کی ہم عبادت کرتے، ہم ریاضت کرتے، ہم تقویٰ سیار پر جو ہے اپنے زندگی بسر کرتے، ہم غریبوں کی جو ہے مدد کرتے، اپنے پیشانی کو اور اپنی بارگاہ پر جھکاتے رہتے۔ کب جو ہے ہمارا بلاوا اور اپنی بارگاہ پر آ جائے ہم کو پلٹنا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے ہماری زندگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اگر رب نے بھیجا ہے تو عبادت الہی کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، یہ سمجھو۔ یہ آج کی محفل، آج کا جو ہے ذکر پاک، یہ ہمارے زندگی کے لیے جو ہے بہترین نمونہ عمل ہو جائے۔ ایسی بات بیان کروں گا، اگر آپ ایک جملے پر جو ہے اگر عمل کر لیا، قسم خدا کی جب تک آپ زندہ رہیں گے وہ کام کرتے رہیں گے، آپ کو ثواب ہوگا۔ جب تک عمل کرتے رہیں گے مجھے بھی ثواب۔ سبحان اللہ۔ تقریر تو روز ہوتی ہیں، مولانا آتا ہے، جانتے ہو کتنے میں آتا ہے آج کل؟ پیر صاحب کتنے میں آتے ہیں؟ کہیں 1 لاکھ روپے،
कहीं 50,000 रुपए, कहीं 51,000, इतने में पीर साहब आते हैं। ये दौरे हाजिर पर जो है एक ही मसला कैसा था, जब बुला लो आपके दरवाजे पर हाजिर होता है। एक ही पीर ऐसा था, जब बुला लो आपके दरवाजे पर हाजिर था। वो पीर को जो है गाड़ी की जरूरत नहीं थी, वो पीर को जो है हवाई जिहाद की जरूरत नहीं थी। वो खानदान कौन सा था, वो मसला कौन सा था? वो खानदान सरकार ताहिर मिल्लत का था, सरकार जाहिर मिल्लत का था, सरकार तैयब मिल्लत का था, सरकार तौहीद मिल्लत का था। हर मुरीद ने जो है आवाज दिया है, वो कसम खुदा की पीर को चाहे साइकिल पर आना पड़े, चाहे पैदल आना पड़े, चाहे किसी की गाड़ी पर आना पड़े, और जो है नजराने का मुआयदा नहीं, मगर आज अगर पीर आता है तो सबसे पहले नजराना का मुआयदा करता है। बोलो जो है दोगे कितना, बोलो जो है मेरा नजराना कितना होगा। कसम खुदा की खानदान तैयब मिल्लत को अगर बुलाया होगा बंद मुट्ठी पर कितना नजराना दे दिया, कभी अपनी जबान से उफ ना किया होगा। ये है तबलीग। जानते हो, आप लोगों ने देखा होगा, सरकार तैयब मिल्लत अलैहि रहमतो व रिदवान का जमाना आज से तकरीबन 21 साल का जमाना हो गया। सरकार तैयब मिल्लत का जो है विसाल 21 साल हो गए, या 21वां या फिर ये 22वां साल होगा। आपका घर देखा है आपने, आपके हयात में जो है सरकार तैयब मिल्लत का घर देखा है। घर इतना कच्चा था, दरवाजा इतना छोटा था, अगर कोई मुरीद जाए तो सर पर जरूर लगता था। आज के पीरों का घर देख लो, चंदा कर करके जो है महल बना लिया, चंदा कर करके महल बना लिया। किसी ने कहा सरकार आपका घर तो कच्चा है, आपके घर का दरवाजा तो ऐसा है जब हम लोग जो है अंदर जाते हैं हमारे सरों पर लगता है। सरकार तैयब मिल्लत, सरकार तौहीद मिल्लत अलैहि रहमतो व रिदवान ने अर्ज किया था, जवाब दिया था, ऐ मेरे चाहने वाले, मेरा मिशन जो है महिलात नहीं, मेरा मिशन जो है दुकानदार नहीं, मेरा मिशन जो है तबलीग के हक का है, मेरा मिशन जो है दीन की तबलीग है, मेरा मिशन जो है मदरसा है, कहीं मसाजिद है, कहीं गुरबा मिस्कीनों की मदद है। ये मेरा मिशन है, और इसी मिशन पर जो है मैं कायम रहूंगा और अपने औलादों को भी हुक्म दूंगा कि यही मिशन पर जो है तुम भी। अच्छा मकान था, आजकल के पीर जानते हो कई लाख, कहीं 17 लाख, कहीं 18 लाख, कहीं 22 लाख, कहीं 24 लाख के गाड़ी में पीर साहब आते थे। और सरकार तैयब मिल्लत ऐसे वैसे पीर नहीं थे, बड़े पाए के बुजुर्ग थे, बड़े पाए के बुजुर्ग थे। ऐसा नहीं कि सरकार तैयब मिल्लत ही हूँ, उसके पहले वाले भी बुजुर्ग जो है बड़े पाए के बुजुर्ग थे, मगर कभी जो है मुतालबा जो है पैसे का नहीं किया, घर का नहीं किया। कहा हुजूर बनवा क्यों नहीं लेते, कहा किस लिए बनवाऊं, मेरा मिशन ये घर नहीं, मेरा मिशन ये मकान नहीं, मेरा मिशन ये दुकान नहीं, मेरा मिशन है लोगों के दिलों पर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत, मेरा मिशन है तबलीग के हक, मेरा मिशन है मेरा मिशन है नाना जान की सुन्नत, नाना जान के किरदार को। ये है मेरा मिशन, ये है मेरा काम, ये है मेरा किरदार। अल्लाह अकबर। आजकल के मामला तो जो है बहुत कुछ हुआ करते, रूदे पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु रोटी जबा की रोटी खाकर जो है तुमको तबलीग किया है, तुम्हारे दिल पर मुस्तफा की मोहब्बत को काम किया है, तुमको बताया है सुन्नत मुस्तफा क्या है, तुमको बताया है नमाज का तरीका क्या है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। हम जैसे वफादार तुम्हें कम ही मिलेगी, देखोगे जमी खोद के तो हम सच्चे दिल से नबी के आते, हम सच्चे नबी के उम्मती हैं। याद रखना, मेरे जुमलों को अपने दिल की गहराइयों पर करने की कोशिश करना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया की 3 चीजें मरने के बाद भी काम पर आएगी। वो 3 चीजें हैं क्या? पहली चीजें मेरे आका फरमाते हैं, औलाद है। अगर बाप अपने बेटे को साले बना दिया,
बाप अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बना दिया, बाप अपने बेटे को दीन का जो है मुबल्लिग बना दिया। कसम खुदा की वो बेटा तुम्हारे मरने के बाद भी जो है, तुम्हारे बाप के मरने के बाद भी जो है बाप को आसानी पहुंचाता रहेगा। कहीं सूरह यासीन पढ़कर बख्शता रहेगा, कहीं सूरह रहमान पढ़कर बख्शता रहेगा, कहीं खत्मे कुरान पाक पढ़कर बख्शता रहेगा, कहीं जो है कलमा शरीफ दरूद पाक पढ़कर जो है बाप को साले सवाब करता रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं दीनदार औलाद बाप के मरने के बाद भी अपने बाप को जो है आसानी पहुंचाता रहेगा। अगर तुम आसानी चाहते हो, अगर तुम अपने दिल पर नूर चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं अपने बच्चे का हाकिम बन जाऊं, अपने बच्चे का जो है हुक्मरान बन जाऊं, तो आज से जो है ये अहद कर ले, अगर मेरे घर पर बच्चा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान दीन का मुबल्लिग बना दूं। वो बच्चा मरने के बाद भी तुम्हारे इसाले सवाब कुरान पढ़कर इसाले सवाब करता रहता। जानते हो जो बच्चा कुरान पढ़ता है उसका मामला क्या होता है? बच्चा कुरान पढ़े घर को रोशन कर दे। जहां पर कुरान की तिलावत होती है रब की रहमत हुआ करती है, रब की इनायत हुआ करती है। और कुरान एक ऐसी किताब है कि शुरू से आखिरी तक का जो है तुम्हें कुरान पर जो है उस चीज का इल्म है। पढ़ो तो सही, देखो तो सही। कुरान को देखना इबादत है, सुनना इबादत है, कुरान को पढ़ना इबादत। बच्चा घर पर कुरान पढ़े, घर पर रहमतें बरकतें हो। बाप को पढ़कर साले सवाब करे, बाप के कब्र बाप को जो है आसानी पैदा हो जाए। बच्चा कुरान पढ़े, लोगों को हिदायत याफ्ता कर। अगर अपने घर पर पढ़ा, ये अकीदा रहा, आज ये जो है सूरह यासीन पढ़कर मरहूम यूनुस को जो है मैं पेश करूंगा। घर पर पढ़ा है कुरान तो घर पर रब की बरकतें होंगी। तुमने पढ़ा है, तुम्हारे लिए रब्बे काबा सवाब को जो है इकट्ठा करके आला कर देगा। जब यूनुस बाबा को दोगे ना तो उसका सवाब जो है मरहूम यूनुस बाबा। आज 10वां 20वां 40वां चहल्लम सालाना बरही तिरही तिरखी ये सब मना कर जो है अपने दिलों को जो है मुर्दा मत करो। आला हजरत फतावा रिजवा फरमाते हैं इसाले सबाब का खाना दिल को मुर्दा करता है। बुलाओ, अच्छा अगर आपके दिल पर तमन्ना है कि नहीं मैं आवाम को जो है मैं खिलाऊंगा, अपने घर पर बुलाऊंगा, अपने बाप के इसाले सवाब की वजह से बुलाऊंगा तो खिलाओ, थोड़ी सी चेंजिंग कर दो कि भाई ये साले सबाब का खाना कल सुबह होगा। आज सरकार गौसे पाक की न्याज हो रही है, गौसे पाक का लंगर हो रहा है, तजबे मिल्लत के नाम से महफिल की गई है, तौहीद मिल्लत अलैहि रहमा के नाम से जश्न किया गया है, आला हजरत के नाम से जो है महफिल पाक सजाई गई है। और फिर लंगर है तो कसम खुदा की जो भी खाएगा उसके दिल पर जो है नूरानियत पैदा होगा, उसका दिल जो है नूर हो जाएगा। और वो जिसका दिल जो है नूर हो जाता है वो बंदे हुजूर हो जाता है। और जो बंदे हुजूर हो गया, नबी का गुलाम और आशिक हो गया, उसका ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत। थोड़ी सी तरकीब को जो है बदल दो, तरकीब को बदल दो, हर मकाम पर तुम्हें कामयाबी और कामरानी मिले। दरूद पाक पढ़िए। मेरे महबूब की तौकीर निकल गई, मेरे महबूब की आजमतें निकल गई। जन्नत पर था, जब रब्बे अकबर उसके दिल को थकोला तो देखा कि इसके दिल से मुस्तफा की ताजीम निकल गई। फौरन रब्बे काबा हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे महबूब के लिए जो है ताजीमी सजदा करो, अपने सर को झुका दो। फौरन फरिश्ते जो है तमाम फरिश्ते रब्बे अकबर का हुक्म पाया, अपने सरों को जो है रब की बारगाह पर झुका दिया। अरे अकड़ गया इब्लीस, अकड़ गया शैतान, कहा है रब्बे काबा मैं तो आतिश का बना हूँ, ये तो मिट्टी का बना है। अरे जो है आतिश और मिट्टी को सजदा नहीं करता। अल्लाह अकबर, रब कहारी पर आ गया और रब जलाल पर आ गया, कहा जो है मेरे जन्नत से निकल जा, मेरे जन्नत से निकल जा। और फिर इस दौरे हाजरा में जो नबी की आल से बुग़्ज़ रखे, जो नबी की आल से किना रखे,
جو आले सादात से गुर्ज रखे, कसम खुदा की वो कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। पाएगा जब अल्लाह के रसूल के औलादों की मोहब्बत अपने दिल पर रखेगा। बेशक, वाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो मेरे औलाद से मोहब्बत रखेगा, हसन से मोहब्बत रखेगा, हुसैन से मोहब्बत रखेगा, फातिमा से मोहब्बत रखेगा, अली से मोहब्बत रखेगा,